Yes, Sakshi ji. Nothing is apart from the substance, but at the same time, the energies are different from the substance. This conception is not contradictory. Srimad-Bhagavatam explicitly promulgates this simultaneously one and different philosophy of Vedanta Sutra, which begins with Janamade Asya. Srimad-Bhagavat 1.1.1 Sutra. This knowledge that the energy of Lord is simultaneously one with and different from Lord is the answer to the mental speculator's attempt to establish the energy as absolute. When this knowledge is factually understood, one sees the conception of monism and dualism to be imperfect. Development of this transcendental consciousness, grounded in the conception of simultaneously one and different, leads one immediately to the stage of freedom from threefold miseries. The threefold miseries are: first, those miseries which arise from the mind and body; second, those miseries inflicted from another living beings; third, those miseries arising from natural catastrophes over which one has no control. Srimad Bhagavatam begins with surrender of the devotee unto the absolute person. The devotee is fully aware that he is one with absolute, and at the same time in the eternal position of servant to the absolute. In the material conception, one falsely thinks himself the lord of all he surveys, and therefore he is always troubled by threefold miseries of life. But as soon as one comes to know his real position as transcendental servant, he at once becomes free from all the miseries. As long as the living entity is trying to master the material nature, there is no possibility of his becoming servant of the Supreme. Service to the Lord is rendered in pure consciousness of one's spiritual identity. By the service, one is immediately freed from the material en- encumbrances. Hare Krishna. N- So nothing is apart from the substance, but at the same time, the energies are different from the substance. Conception is not contradictory. This is called which philosophy? Simultaneously one and different. Simultaneously one and different. Achintya Bheda Bheda Tattva. तो भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है, और जो भगवान की एनर्जीज हैं वो भगवान से डिफरेंट नहीं। तो भगवान की एनर्जी कौन सी है? वो जी इंटरनल, एक्सटर्नल और मार्जिनल। हम किस में आते हैं? हम तो मार्जिनल ये तथा शक्ति हैं भगवान। So energies are non-different, at the same time different. So it is called simultaneously one and different philosophy of Vedanta Sutra, which begins with Janmadhyasya Yataha. तो ये जो ज्ञान भगवान की एनर्जी का, this is simultaneously one with and different from the Lord. क्योंकि शक्ति एक तरह अलग भी है और एक तरह अलग नहीं भी है. This is an answer to the mental speculator attempt to establish the energy as absolute. मेंटल स्पेकुलेटर क्या करते हैं कि एनर्जी आपस में ही एक एब्सोल्यूट है, बट ऐसा नहीं है. When this knowledge is factually understood, one sees the conception of monism, dualism to be imperfect. This monism, dualism is Dvait, Advait. Advait and Dvait. What is this? Anybody can tell? What is Dvaita? What is Advaita? प्रभु जी द्वैत तो दो हुए कि हम दो हैं, और अद्वैत एक ही होता है, वन। हम कौन सा फॉलो करते हैं? हम द्वैत फॉलो करते हैं प्रभु जी, वैष्णव। Yes.
द्वैत का मतलब है हम हैं, भगवान अलग है, हम अलग हैं। कृष्णा है और हम है। और जो इम्पर्सनलिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं, हम सारे एक ही हैं। एक ही है। दैट इज अ रॉन्ग कंसेप्शन। तो ऐसे करके इस भावना से, this is a conception of simultaneously one and different leads one immediately to stage of freedom from the threefold miseries. थ्रीफोल्ड मिजरी कल हमने डिस्कस किया था। यस प्रभु आदि दैविक, आदि भौतिक, जी। आदि आध्यात्मिक कलेशास। तो भागवतम जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और भगवत गीता जो है कहाँ से बंद हो रही है? शरणागति से प्रभु। प्रभु जी वो वहाँ भगवान कृष्ण का स्वयं ज्ञान उन्होंने दिया था, और यहाँ पर वेद व्यास जी ने इसको कंपाइल करके पास्ट टाइम्स भगवान के लिए वर्णन। सरेंडर, भगवत गीता सरेंडर से कंक्लूड हो रही है और भागवतम सरेंडर से बिगिन हो रही है। It is beginning from the surrender. To suppose when you are surrendered, then you are eligible to hear Bhagavad. It's beginning from surrender. The devotee is fully aware that he is one with the Absolute and at the same time in the eternal position of servant to the Absolute. भगवान की मेरी क्वालिटी तो सेम है, बट भगवान का मैं दास हूँ, भगवान का सर्वेंट हूँ, भगवान की मुझे सेवा करनी है। इसलिए सेवा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो नेचुरल पोजीशन है वो सेवक की पोजीशन है। वो किसी और बॉस बॉस बनने की, मास्टर बनने की पोजीशन नहीं है, तुम्हारी सर्वेंट की पोजीशन है। सर्वेंट इज टू सर्व सिंसियरली to the best of his capacity, where to serve. In the material conception, one falsely thinks himself the lord of all his surveys, always troubled by the threefold misery. क्योंकि भौतिक जगत में हम अपने आप को स्वामी समझते हैं, मास्टर समझते हैं, बॉस समझते हैं, और जो भी मैं देखता हूँ उसका मैं बॉस हूँ, मैं लॉर्ड हूँ, मैं ही मालिक हूँ सब चीजों का। तो ऐसा सोचकर वो पूरा कलेश में, कलमश में, एंजाइटी में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है। वो समझता है कि मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरा बिजनेस है, मेरी फैमिली है, ये मेरा 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 जब करता है वो आदमी, तो वो फंस जाता है इस भौतिक कलेशों में, त्रैगुण के कलेशों में। बट दोबारा जो अपने रियल पोजीशन में जाता है कि मैं भगवान का एक आध्यात्मिक दास हूँ, तो सारे दुखों से वो विमुक्त हो जाता है, सारे दुखों से वो फ्री हो जाता है, फ्रॉम एवरीथिंग। So this is the solution is to come into the real knowledge. Real knowledge, you are a servant of Krishna, serve Krishna. As soon as you are trying to master the nature, there is no possibility of becoming servant of the Supreme. Master की tendency में रहो या servant की tendency में रहो. Which tendency, which consciousness you want to serve? So you be in your natural position, your normal position is of servant. Be in that mood. Service to the Lord is rendered in pure consciousness of one's spiritual identity. By service, one is immediately freed from material encumbrances. इसलिए बोल रहे हैं सेवा करो, सेवा करो, भक्ति करो, सारे दुखों से परे हो जाओगे आप। बट आप फिर भी करते नहीं हो, फिर भी फंसे रहते हो भौतिक चीजों में, इसलिए आप परेशान रहते हो। Because we don't want to serve Krishna. We want to serve, किसकी सेवा करना, किसकी सेवा करना चाह रहे हैं? माया की। माया की, इंद्रियों की खुशी। हाँ, वो माया जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो वर्ड्स में। कौन से वर्ड्स हैं? माया, माया टू वर्ड्स, माँ और या। हाँ। जय सुनीता जी बताइए। माँ तो इसका डेफिनेशन ही पता लगे प्रभु जी। बताइए बताइए, माँ और या, ठीक बोला आपने। माँ तो मेरा हो गया, हम्म, और या भगवान का, ऐसे होगा ना। नहीं नहीं नहीं, मटेरियल,
किसी को पता है? तो ये भौतिक जगत होगा ये तो। नहीं नहीं, माया। दुनिया का या हो गया क्या इसमें? माया का मतलब है सारी कुछ चीजें आनी चाहिए आपको। माया मीन्स मा प्लस या। मा मा मीन्स द थिंग, या मीन्स विच इज नॉट देयर, द थिंग अच्छा, विच इल्यूजन है, जो चीज दिखाई दे रही है वो एक्चुअल में है नहीं। नहीं है, दिस इज कॉल्ड माया। ऐसा लगता है इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट है, इतने अच्छे फार्म हाउस हैं, इतनी अच्छी मर्सिडीज हैं, इतना अच्छा एंजॉयमेंट है, अमेरिका चले जाएंगे कितना अच्छा भोग करेंगे वहां जाके। बट वो क्या कर रहे हैं, सारे स्क्रिप्चर्स बोल रहे हैं वो सारा इल्यूजरी है। आज इन डेजर्ट, ये सारा कुछ इल्यूजन है, ये सारा कुछ माया है, ऐसा लगता परवर्टेड वर्ल्ड है ना प्रभु जी, ये परवर्टेड वर्ल्ड। है। तो वो जो मिराज, जैसे मिराज फॉल्स, वो जो बोलते ट्री हैं। का दिया भगवान का एग्जांपल, दानिन ट्री का हाँ, रिफ्लेक्शन है। ये फॉल्स अट्रैक्शन में अट्रैक्ट होके पूरा जीवन स्पॉइल कर देते हैं हमारा। हाँ, इसलिए हम ये भागवतम सुनते रहते हैं, भगवत गीता सुनते रहते हैं, चैंट करते रहते हैं, तो हमारी बुद्धि जो है स्टेबल रहती है। अगर हम सारा सुनना बंद कर दें, माया विल कैच यू, किक यू एंड स्पॉइल यू लाइक एनीथिंग। दैट्स व्हाई वी हैव टू हियर द एब्सोल्यूट ट्रुथ एवरी डे। यस साक्षी जी। Over and above this, Srimad Bhagavatam is a personal commentation on the Vedanta Sutra by Sri Vyasadeva. It was written in maturity of a spiritual life through the mercy of Narad. Sri Vyasadeva is authorized incarnation of Narayana, the personality of Godhead. Therefore, there is no question as to his authority. He is the author of all other Vedic literatures, yet he recommends the study of Srimad Bhagavatam above all the others. In other Purana, there are different methods set forth by which one can worship the demigods. But in the Bhagavatam, only the Supreme Lord is mentioned. The Supreme Lord is total body, and demigods are different parts of that body. Consequently, by worshipping the Supreme Lord, one does not need to worship the demigods. The Supreme Lord becomes fixed in the heart of the devotee immediately. Lord Chaitanya Mahaprabhu has recommended the Srimad Bhagavatam as the spotless Purana and distinguishes it from all the other Puranas. The Yes, yes, yes. So here, तो इसके ऊपर श्रीमद् भागवतम जो है वो पर्सनल कमेंटेशन है वेदांत सूत्र का। व्यासदेव जी ने पर्सनल कमेंटेशन दी है, तो श्रीमद् भागवतम इज द पर्सनल कमेंटेशन ऑफ द वेदांत सूत्र, is written in the time of maturity of Sri Vyäsadeva by the mercy of Sri Narad Muni, who is the spiritual master of, किसके spiritual master हैं नारद जी? व्यासदेव का व्यासदेव। गुरु है जी, गुरु। व्यासदेव अपने गुरु की शिक्षा से उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखी है। और व्यासदेव जी कौन है? ही इज अ लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ नारायणा। लिटरेरी का क्या मतलब होता है? जिन्होंने साहित्य लिखे, सारे साहित्य लिखे हैं प्रभु जी। हाँ, वो सिर्फ साहित्य, सारे लिटरेचर, सारा वेद लिखने के लिए वो इनकारनेशन बनी है, और दैट इज कॉल्ड वेद व्यास, व्यासदेव, है ना। तो भगवान के अवतार है व्यासदेव जी, कोई ऐसी छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है। He's a incarnation of the Lord. He's a Lord, especially for writing literature. He has come. तो उनकी अथॉरिटी में कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि वेद किसने लिखे हैं, किसने शास्त्र लिखने हैं, किसने पुराण लिखे हैं। भगवान ने लिखे हैं, भगवान के इनकारनेशन ने लिखे हैं, व्यासदेव जी ने लिखे हैं। तो आप उसको सीधा आंसर दे सकते हो। ये तो नोबडी कैन क्वेश्चन ऑन द अथॉरिटी। तो उन्होंने सारे वेद पुराण उपनिषद सब कुछ लिखा है, बट फिर भी वो श्रीमद् भागवतम का स्टडी बोल रहे हैं। सारे सब में से बेस्ट जो है वो श्रीमद् भागवतम, सबसे ऊंचा सारे पुराणों में से।
तो ये सारे अलग पुराणों में अलग अलग मेथड दिए हुए हैं, उनमें से देवी देवता की वर्शिप भी लिखी हुई है। तो ब्रह्मा जी की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो, माता रानी की पूजा करो, ऐसे वेद भी हैं। और डेमीगॉड वर्शिपर्स वो वेद लेके आते हैं, देखो इस शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ है, देवी माँ की वर्शिप करनी है, इसमें शिव जी की वर्शिप लिखी हुई है, इसमें ये लिखा हुआ है ना। सो दैट्स व्हाई द पर्सन हु हैज मेड द वेदास ही इज रिकमेंडेड श्रीमद् भागवतम। जिसने सारे वेद लिखे हैं वो बोल रहा है श्रीमद् भागवतम बेस्ट है, तो फिर भी आप तुम कुछ और करते जा रहे हो। सो लिसन टू हिम, लिसन टू द ऑथर, what the author is telling na. So if you listen to him, obey him, serve him, you will be blessed. तो डेमीगॉड वर्शिप लिखी हुई है, मटेरियलिस्टिक वर्शिप है वो। और भागवतम में सिर्फ ठाकुर जी की वर्शिप के बारे में बताया, भगवान का मेंशन किया हुआ है कि भगवान पूरा शरीर है, और जो देवी देवता है उनके अलग अलग शरीर के कुछ पार्ट एंड पार्ट्स। पार्सल। हाँ, वो मेरा हाथ है, वो मेरा लात है, वो मेरा सिर है, मेरा सब कुछ। तो भगवान की पूजा करके, जब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, किसी देवी देवता की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन टेम्पल्स बनाए हैं पूरे वर्ल्ड में, वहां पर सिर्फ राधा कृष्ण है, और कोई देवी देवता नहीं होता है। वाई? सुप्रीम पर्सनैलिटी है उसमें। कविता जी, कार्तिकेयन कविता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, वाई इन इस्कॉन टेम्पल्स ओनली राधा कृष्ण इज देयर? Because they both are one. Why the other demigods are not there? Because Krishna uh, is the Godhead or the main God, Hmm. and because of his leelas, the world is revolving around. Hmm. So we worship the the main God. Others are demigods. Hmm. That's the reason we worship Radha Krishna. Hmm. Others are parts. Demigod. They are parts. पार्ट ऑफ द बॉडी। They are not. They are not gods. They are demigod. They are part of God. They are servants of the God. They are devotees of the God. So if you are putting the water in the root of a tree, then you need not to put water in the stems, twigs, branches, leaves, fruits. Actually, है ना? Only the water in the root, the whole water will go nourish the whole tree. Similarly, when you are hungry, you are having a food in your mouth, that will go in your stomach. You need not to feed the eyes, ears, है ना, और mouth और legs like that. तो इसलिए सिर्फ कृष्णा की वर्शिप करने से पूरे यूनिवर्स की वर्शिप हो जाती है ऑटोमेटिकली। सारे 33 करोड़ देवी देवता की वर्शिप एक साथ में हो जाती है उनकी। We cannot do like this. प्रभुपा जी कहते हैं अगर डेमिगॉड वर्शिप करना है तो पूरा 33 करोड़ का करो, फिर सिर्फ एक एक दो तीन का क्यों कर रहे हो? तो अगर एक डेमिगॉड को अगर 1 मिनट भी लगता है वर्शिप करने में, एक देवी को 1 मिनट लगाएं, तो कितना 33 करोड़ मिनट है क्या आपके पास में? यू हैव 33 करोड़ मिनट्स। कितना हो जाएगा ये? कितने घंटे हो जाएंगे 33 करोड़ मिनट? हाँ, अंजलि जी, हाउ मेनी मिनट? हाँ, 33 करोड़ मिनट। हाँ, कितने घंटे बनेंगे इसके? मैं कैलकुलेट, कैलकुलेट करके बता देती हूँ। मीटर में कैलकुलेट करो। इतना टाइम है क्या आपके पास? नहीं, Then you worship Krishna only. When just by worshiping Krishna, you are worshiping all the 33 crore in one time. This is called the smart worship, intelligent worship, supreme worship, Krishna consciousness. तो ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, ये प्रभुपाद जी ने कर रहे हैं, तो कोई और वर्शिप करने का जरूरत नहीं है। तो भगवान जो है वो भक्त के हृदय में है, वो भक्त के हृदय में है।
और चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम को पढ़ना है, और ये जो है ये स्पॉटलेस पुराण है, इसमें किसी तरह का मल नहीं है, कोई डर्ट नहीं है, कोई कंटेमिनेशन अमल पुराण ना, ये सारे पुराणों से अलग है, बेस्ट पुराण है। यस साक्षी जी। The proper method for receiving this transcendental message is to hear it submissively. A challenging attitude cannot help one realize this transcendental message. One particular word is used herein for proper guidance, and the word is susrusu. One must be anxious to hear this transcendental message. The desire to sincerely hear is the first qualification. Less fortunate persons are not at all interested in hearing Srimad Bhagavatam. The process is simple, but application is difficult. Unfortunate people find enough time to hear ideal social and political conversations. But when invited to attend a meeting of devotees to hear Srimad Bhagavatam, they suddenly become reluctant. Sometimes professional readers of Srimad Bhagavatam immediately plunge into confidential topics of the pastime of Supreme Lord, which they seemingly interpret as sex literature. Srimad Bhagavatam is meant to be heard from the beginning. Those who are fit to assimilate this work are mentioned in this shloka. One becomes qualified to hear Srimad Bhagavatam after many pious deeds. The intelligent person with thoughtful discretion can be assured by great sage Vyäsadeva that he can realize the Supreme Personality directly by hearing Srimad Bhagavatam without undergoing the different stages of realization set forth in the Vedas. One can be lifted immediately to the position of Paramhansa simply by agreeing to receive this message. Krishna. Hare Krishna. So this is the proper method of receiving the spiritual message. What is the proper method? सोनम जी। प्रभु जी विनम्रता के साथ सुनना है। To be humble, submissively. विनम्रता के साथ Constantly सुनना, submissingly सुनना है। without any proud. Yes, to hear it submissively, humble like a blade of grass. So like in that mood you should hear submissively, in the mood of learning, है ना? A challenging attitude cannot help one realize this transcendental message. इसको challenging way में सुनेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको, है ना? तो जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो submissively उसको receive करते हैं. When Arjuna was in that condition, that time Krishna gave. And now Parikshit Maharaj is in that condition. Within 7 days he is going to die. And he is in submissive position before Shukadev Goswami. And in that submissive position, his Bhagavatam is going on. Not in a challenging spirit, in a submissive spirit. One particular word is used in for propaganda. The word shushushu. Shushushu means Anxiously प्रभु जी। जी आप बताइए। सुनना नहीं। निशा राजपूत जी प्रभु जी। क्या मतलब है शुशु का? प्रभु जी संस्कृत वर्ड है। हाँ, वहाँ लिखा हुआ है दिस वर्ड इज शुशु. व्हाट इज द मीनिंग? इच्छा होना प्रभु, इच्छा, डिजायर टू लिसन दिस. हाँ, कहते हैं ना ये भागवतम सुनने का भी कोई कॉस्ट देना पड़ता है ना? कुछ भी फ्री में कोई चीजें मिलती नहीं है यहाँ पर. इस वर्ल्ड में हर एक चीज की प्राइस पे करनी पड़ती है. तो भागवतम का सेशन जो है इसकी भी प्राइस पे करनी पड़ती है. क्या प्राइस? Sincerely. One must be anxious to hear this transcendental message. Desire to listen, yes, anxiousness. कोई अच्छा ही नहीं है
किसका ऑडियो ऑन हुआ? कोई इच्छा ही नहीं है मेरी। तुम्हारी इच्छा ही नहीं है तो तुम क्वालिफाइड भी नहीं हो उसको सुनने के लिए। तो हमारी जो जिज्ञासा है, हमारी जो इच्छा है, हमारी जो ईगरनेस है, हमारा जो ग्रीडीनेस है इसको सुनने का, वो इसका प्राइस है उसका पे करने का। अगर वो तुम पूरा डल हो, लेथार्जिक हो, लेजी हो, कोई इंटरेस्ट नहीं है, देन यू आर नॉट क्वालिफाइड, है ना? द डिजायर टू सिंसियरली हियर इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन। जो सुनना है इसके बारे में, क्या है भागवतम ये, कैसे कैसे इसको समझे, कैसे अप्लाई करें अपने जीवन में। Less fortunate person are not at all interested in hearing this Srimad Bhagavatam. Less fortunate people are, world is less fortunate. They are not fortunate. That's why they are not listening. The process is simple, application is difficult. बहुत बहुत easy है यार ये तो। हरे कृष्णा वाले बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, पर तुम करके तो दिखाओ इसको रोज। हरे कृष्णा वाली लाइफ बहुत सिंपल है, बट तुम इसको अप्लाई कर पाओगे रोज? एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। बड़े एप्लीकेशन भी इजी हो जाएगी भक्तों के संग में। जब तुम भक्तों के संग में रहोगे तो सारा कुछ इजी हो जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा ये। अनफॉर्चुनेट पीपल फाइंड इनफ टाइम टू हियर आइडल सोशल पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन। तो हम जो है, दो तरह की कथा होती है, एक कृष्ण कथा होती है और दूसरी कौन सी होती है? पॉलिटिक्स। नहीं, उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, किसी को पता है? वर्ल्डली टॉक, मटेरियलिस्टिक। वर्ल्डली टॉक कहते हैं, वर्ल्डली टॉक। मैं इंग्लिश में नहीं, आपको संस्कृत में बोल रहा है। What we tell in भौतिक बातें, भौतिक ज्ञान। हाँ, उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्राम्य कथा। हाँ जी, हाँ जी, क्या बोलते हैं? ग्राम्य कथा। ग्रामीण कथा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हमने पहले बोला था, आप भूल गए थे। ये तो हाँ जी, सुना हाँ था जी, बोला हो, पर प्रभु जी ये बोला हुआ है। याद देखो, रखो, ग्राम्य कथा, ग्राम्य कथा। जिस कथा में कृष्ण नहीं है उसको ग्राम्य कथा बोलते हैं। प्रभु जी लेडीज, इंग्लिश में तो वर्ल्डली टॉक ही कहते हैं ना। इंग्लिश में तो वही बोलते हैं। अब लेडीज के, चलो आज किट्टी पार्टी करेंगे, किट्टी पार्टी में जाएंगे तो सारा जो चलेगी टॉक्स, दैट इज कॉल्ड ग्राम्य कथा। जो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं कृष्णा में, वो सारा पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे, कोरोना वायरस के बारे में बात करेंगे, ये सारी बातें करेंगे। कृष्ण के बारे में कोई बात नहीं करेगा, है ना? When they are invited to attend a meeting or devotees to hear Bhagavatam, they suddenly become reluctant. ओ ये, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकता, और बहुत काम है, वो मीटिंग में जाना है, यहाँ पर जाना है, वो शादी में जाना है, इसमें जाना है, वो करना है, ये इसमें नहीं जा सकते। रिलक्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्योंकि क्या हो रहा है? ग्रामीण कथा सुननी है। He is not anxious to hear this transcendental message. He is not anxious. He is not ready. He is not. He don't want. That's why he wants something else. तो समथिंग एल्स चाहिए तो वो लो, तुम्हें डायमंड नहीं चाहिए, कुछ कुछ वो ऐसे ही कुछ मेटल चाहिए, ले लो वो जाके। हम तो डायमंड बांट रहे हैं यहाँ पर। वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग जिसने डायमंड। इसका रस नहीं चखा तो वो नहीं आ सकता है। और हम सब लोगों को बोलते हैं तो इतने लोग बोलते हैं मुझे टाइम नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को समझ नहीं आती, मतलब दे डोंट वांट टू कम। और उनको कोई आपने बताया किट्टी पार्टी में तूने क्या ज्वेलरी पहनी है, क्या कपड़ा पहना है, कहाँ घूमने जाना है, ये सब बातें होती है प्रभु जी। यस, दैट इज कॉल्ड ग्राम्य कथा। तो इसमें क्या है, समटाइम प्रोफेशनल रीडर ऑफ भागवतम इमीडिएटली, तो सीधा वो रासलीला के बारे में बात करेंगे, सीधा 10th कैंटो में जो कॉन्फिडेंशियल टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। श्रीमद् भागवतम इज मेंट टू बी हर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। इसलिए हमने 1 महीना तो सिर्फ इंट्रोडक्शन किया, हमने फर्स्ट चैप्टर से शुरू नहीं किया, हमने पहले सारा भूमिका समझाया आपको, 1 महीना लग गया उसके अंदर, बिगिनिंग।
Those who are fit to assimilate this work are mentioned. One becomes qualified to hear Bhagavatam after many pious deeds. कृत पुण्य पुंजा, बहुत ज्यादा पुण्य करके जब हम पूरा क्वालिफाइड है तब हम भागवतम को सुनने के लिए काबिल होते हैं. The intelligent person with thoughtful discretion can be assured by the great sage Vyäsadeva that he can realize the Supreme Personality directly by hearing Çrémad-Bhägavatam. तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसको गारंटी दे देते हैं व्यासदेव जी, किसको भगवान मिल जाएंगे, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा सिंपल श्रीमद्-भागवतम सुन के. तो श्रीमद्-भागवतम ठाकुर जी हैं, कृष्ण है, गोविंद है. भागवतम में और ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं है, रियलाइजेशन आ जाएगा. Without undergoing the different stages of realization set forth in the Vedas, one can be lifted immediately to the position of Paramahansa simply by agreeing to receive this message. निशा जी, ये परमहंसा कौन होते हैं? निशा राजपूत जी. जी प्रभु जी. Who are the Paramahamsas? प्रभु जी मुझे तो आइडिया नहीं है. Okay. जी मैं बताऊं. स्पिरिचुअल मास्टर प्रभु, स्पिरिचुअल मास्टर. जिससे हम मैं पूछे बताऊं? प्रभुपाद, प्रभुपाद. नहीं मैं बताऊं. रोहिता जी, आप टॉप मोस्ट पोजीशन प्रभु जी. सन्यासा की है, रोहिता जी जिसमें बताइए. कोई रोहिता जी आदमी दूध में से पानी को अलग कर सकता है, वो पोजीशन है. रोहिता जी आप बताइए, आपको पता मुझे है? कह रहे हो प्रभु जी? यस. प्रभु जी वो सबसे उत्तम योनि में आते हैं, महाराज कहलाते हैं वो, क्योंकि वो परमहंस जो होता है, हंस दूध में से पानी और दूध में से अलग करके उसको यूज करता है. तो ऐसे ही जो ग्रेट सेजेस होते हैं, जो बहुत परम ज्ञानी होते हैं, जो भगवान के अति प्रिय होते हैं, वो ऐसे ही अपने आप को टोटली अलग कर देते हैं संसार की एक्टिविटीज से और टोटली सरेंडर टू गॉड. तो ये चारों वर्णों आश्रमों में कौन सी कैटेगरी में होते हैं? सबसे उत्तम कैटेगरी में आते हैं प्रभु जी. उत्तम कैटेगरी सन्यासी. सन्यासी क्या आती है ना प्रभु जी? संन्यास में भी 4 कैटेगरीज हैं. अच्छा जी, महाराज की कैटेगरी में आते हैं ना. संन्यास में भी 4 कैटेगरीज हैं. कौन सी 4 कैटेगरीज हैं आप बताइए? उत्तम, मध्यम. नहीं ये एक तो महाराज है प्रभु जी. महाराज नहीं, वो जो उस दिन कुटिका बहुद्विका, यस बोलिए अनीता जी. यस, वेरी नाइस. उसका मीनिंग नहीं मालूम है, आपने बस नाम बताया था. कुटिका, बौद्धिका और एक है प्रचार करते हैं ना, जो वो जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, वो जो ट्रैवल करके प्रचार करते हैं. तो परिराजक परिजा आचार्य ऐसे कुछ. और लास्ट में ये परमहंस. वेरी नाइस. फोर्थ वाला. अनीता जी ध्यान से सुन रहे हैं. मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्योरिटी जिनमें है, हाईएस्ट लेवल के जो सन्यासी हैं वो परमहंस हुए. थर्ड जो है वो परिव्राजकाचार्य. तो घूम के प्रचार. This is traveling for preaching. Prabhupada ji is traveling all over the world to preach the message of Krishna. क्योंकि जो परमहंस है उसको भी थर्ड लेवल पे आना पड़ता है प्रचार के लिए. जो टॉप मोस्ट डिवोटी है ना, उसको मिडिल लेवल पे आना पड़ता है पब्लिक डीलिंग के लिए. टॉप लेवल पे वो प्रीचिंग नहीं कर सकता, बिकॉज द टॉप लेवल. महेश प्रभु जी के यहाँ पर आए थे परिचारी जो है, वो आए थे, वो जो ट्रैवल करते हैं, वो गांडी में लेकर के. Because the top devotee has to come to second level to do the public dealing. Public dealing first level पे, top level परमहंसा level पे possible नहीं. So he has to follow this parivrajaka to do the public dealing. So that's why the top devotee become middle devotee to do the public dealing, to preach the message of Krishna. Okay.
तो इसमें क्या लिखा है, विदाउट अंडरगोइंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ रियलाइजेशन सेट फॉर द वन कैन बी जस्ट, ये सारा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कर्म योग, ध्यान योग, है ना, ज्ञान योग, अष्टांग, कुछ करने की जरूरत नहीं है. One can be lifted immediately to the position of Paramhansa simply by agreeing to receive this message. सिंपल भागवतम सुनने से तुम परमहंसा की पोजीशन पे पहुंच सकते हो. पता है नोट कर रहा हूँ लिफ्टेड, ऐसा रख- कोई स्टेयर से जाने की जरूरत नहीं है. मुझे जाना है 70th फ्लोर पे, वहां लिफ्ट लगी हुई है, सीधा लिफ्ट ली और सीधा पहुंचे उस फ्लोर पे जाकर. तो भागवतम एक लिफ्ट है, आपको लिफ्ट करा देगी. एक सॉन्ग आया ना मुझे. आने वाला है प्रभु जी, हाँ. अब उसका आनंद भी आने वाला है चंद्रोदय मंदिर के अंदर. सीधा 7th फ्लोर पे चलेंगे हम लिफ्ट में. यस यस यस. अभी आप वेट करो 2-3-4 महीने, तो पूरा आपको ऊपर तक लेके जाएंगे, ऊपर तक हो जाएगा आपका पूरा. ओके.